हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड परचेस कंसिडरेशन के मेथड्स और उसका मीनिंग देख लिया है। अभी हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म जर्नल एंट्रीज क्या आती हैं वो देखेंगे। फर्स्ट एंट्री फॉर असेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट इन देयर बुक वैल्यू। जो भी हमको बैलेंस शीट दी रहती है उसमें जो असेट्स दिए हैं वो हम फर्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। मीन्स बैलेंस शीट में जो अमाउंट दी है वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, so narration is being asset transfer to realization account. Then second entry, when liabilities transferred to realization account at their book values. Entry will be liabilities account debit to realization account, and narration being liabilities transferred to realization account. All outsiders liabilities are transferred to realization account at their book values. Okay, then third entry for purchase consideration due. हमने अभी देखा था कि पीसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो भी पीसी की अमाउंट है, जो पीसी की अमाउंट है वो जो ड्यू है, टोटल अमाउंट ऑफ पीसी जो रिसीव होने वाली है परचेसिंग कंपनी से, उसके लिए जो एंट्री आएगी, द एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग परचेस प्राइस ड्यू। ओके, और जो अमाउंट टोटल अमाउंट आने वाली है परचेस कंसिडरेशन फ्रॉम परचेसिंग कंपनी, वो अमाउंट जो है वो किस फॉर्म में दिया है उसके लिए फोर्थ एंट्री आएगी फॉर परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश रहेगा या फिर बैंक रहेगा या फिर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में रहेगी अमाउंट या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में। इसमें से जो भी दिया है हमने यहाँ पे बेसिक जो भी है टोटल वो लिया है। इसमें से जो जिसमें दिया है, अगर इक्विटी शेयर्स में दिया है तो ओनली इक्विटी शेयर्स आएगा। अगर इक्विटी शेयर्स इन कैश दिया है तो इक्विटी शेयर्स एंड कैश आएगा। अगर इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में और कैश और बैंक में दिया है तो सब आएगा। सो for that entry will be equity shares in purchasing company account debit, preference shares in purchasing company account debit, debentures in purchasing company account debit, cash or bank account debit to purchasing company account. Okay, narration being purchase consideration received in equity shares, preference shares, debentures of the company and in cash. Okay, then next entry, when asset realized by old firm. If any asset not taken over by the purchasing company, then that asset will be realized by the firm. So entry will be cash or bank account debit to realization account, and narration will be being assets realized. जो भी asset रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। Then next entry, when liabilities paid by old firm. If any liability will not taken by the purchasing company, so that liability will be paid by the old firm. So entry will be realization account debit to cash or bank account, narration being liabilities paid by the old firm. Okay, then next entry, if any asset taken by the partner. When asset taken over by the partner. If any asset not taken over by the company and not paid by the firm and taken over by any partner, then entry will be partner's capital account debit to realization account, in narration being assets taken by partners. Same
When liability is taken over by the partner, if any liability will be taken by the partner, then entry will be realization account debit to partner's capital account. Narration: being liabilities taken over by the partners. Then for payment of realization expenses, and entry will be realization account debit to cash or bank account. In narration: being realization expenses paid. देन उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में अगर जो डिफरेंस आएगा या फिर जो प्रॉफिट हो जाएगा रियलाइजेशन के ऊपर, उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन: being profit on realization distributed among the partners in their profit sharing ratio. Suppose if realization loss is there, then reverse entry will be passed, means entry will be partners capital account debit to realization account. Okay, then next entry, for distribution of general reserve or reserve fund and profit and loss account credit side, if in given balance sheet जनरल रिज़र्व गिवन या फिर रिज़र्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा, तो उसके लिए एंट्री जो भी रिज़र्व फंड दिया है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो एंट्री इज जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड नरेशन: being general reserve or profit and loss account is distributed among partners in their profit sharing ratio. then जो भी परचेस प्राइस जो है वो हमको मिली है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स में, वो शेयर्स और डिबेंचर्स हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फॉर दैट एंट्री, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू पार्टनर्स, partners capital account debit to shares account of the company or to debentures of the company. Narration: being shares or debentures distributed among partners in their final claim ratio. हमको यहाँ पे फाइनल क्लेम रेशियो निकालना पड़ता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आता है उसका हम फाइनल क्लेम रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो में हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो करने के बाद जब पार्टनर्स कैपिटल हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए एंट्री, इफ़ देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस देन एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इफ़ there is a credit balance, then entry will be partners capital account debit to cash or bank account. In narration: being final settlement of partners capital account. यहाँ पे partners capital account close हो जाएगा और इसका बैलेंस हम कैश में ट्रांसफ़र करेंगे, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा. ओके, इट इज़ अ अकाउंटिंग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी. ओके, थैंक यू.